Hello dear students, welcome to Vision Pharmacy. In our today's video, we are going to see MCQ based on pharmaceutical jurisprudence from the topic the Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985, also known as NDPS Act 1985. So before we start with our today's video, please do like, share, subscribe and also press the bell icon for getting updates on upcoming videos. Let's start. The first question is, the Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985 replaced, and the options are A. The Opium Act 1878, option number B is the Dangerous Drug Act 1930, option number C the Drug and Magic Remedy Act 1954, and D both A and B. That is, क्वेश्चन का मतलब है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट ने किस एक्ट्स को रिप्लेस किया, और ऑप्शंस हैं ओपियम एक्ट 1878, डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954, या बोथ ए एंड बी यानी ओपियम एक्ट 1878 एंड डेंजरस ड्रग एक्ट 1930. So students, let me tell you, the Opium Act 1857 was enacted to consolidate and amend laws related to that of cultivation of poppy and manufacturing of opium. However, the Opium Act 1878 was passed to control the regulate different operations related to dangerous drug like opium. The act was later amended in year 1891 and 1894. Okay, then the Central Opium Rule 1934 was enforced to regulate the control of opium cultivation and poppy cultivation. Okay, further, a Dangerous Drug Act was enacted in 1930 with the intention to control different operations related to dangerous drug derived from opium, Indian hemp and coca leaf. Therefore, the right answer of this question is option number D, that is both A and B. Okay, moving to next question. अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैनाबिस हेम्प गांजा कंप्राइजेस ऑफ, यानी डेफिनेशन के अनुसार कैनाबिस हेम्प दैट इज गांजा it comprises of, and the options are A. flowering and fruiting tops, option number B is flowering tops and leaves, option number C is leaves and seeds, and option number D that is whole plant. So students, right answer of this question is option number A, that is flowering and fruiting tops. Okay, moving to the next question. The question is coca derivative means, and the options given are option number A crude cocaine, option number B a cocaine and its derivative, option number C is cocaine, and option number D is all of the above. So students, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D, that is all of the above. Okay, moving to next question. The question is opium derivatives includes except, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा है जो ओपियम डेरिवेटिव में नहीं आता, और ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए प्रिपेयर्ड ओपियम, ऑप्शन नंबर बी फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड्स, ऑप्शन नंबर सी इज डाई एसिटिल मॉर्फिन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज कोकेन. सो स्टूडेंट्स, येस, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोकेन. कोकेन इज नॉट इंक्लूडेड, यानी वो ओपियम डेरिवेटिव्स में नहीं आता. कोकेन कम्स अंडर कोका डेरिवेटिव्स. ओके, ओपियम डेरिवेटिव में मेडिकल ओपियम, प्रिपेयर्ड ओपियम, ये सारे आते हैं. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कैनाबिस हेम्प इंक्लूड्स एक्सेप्ट, यानी इनमें से कौन सा कैनाबिस हेम्प में नहीं आता. ऑप्शंस हैं ए पापावर सोमनीफेरम, ऑप्शन नंबर बी चरस, ऑप्शन नंबर सी गांजा, option number D any mixture with or without any neutral material of B and C, that is charas and ganja, or any drink prepared therefrom. ठीक है, यानी कोई भी मिक्सचर जिसमें विथ और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल हो, चरस या गांजा, या फिर एनी ड्रिंक प्रिपरेशन therefrom. सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पापावर सोमनीफेरम इज नॉट इंक्लूडेड, वो कैनाबिस हेम्प में नहीं आता है. इट कम्स अंडर ओपियम पॉपी. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है
नारकोटिक कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, ठीक है, नारकोटिक कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है। और ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए लोकल गवर्निंग बॉडी, ऑप्शन नंबर बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल गवर्नमेंट, या ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अथॉरिटी टू अपॉइंट नारकोटिक कमिश्नर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नारकोटिक कमिश्नर को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। ओके, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज नारकोटिक ड्रग मीन्स, और ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए कोका लीफ, ऑप्शन नंबर बी कैनाबिस हेम्प, ऑप्शन नंबर सी ओपियम स्ट्रॉ, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ओपियम कैन बी मेड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट इट्स 2 फैक्ट्रीज सिचुएटेड एट, यानी ओपियम का मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 2 जगहों पे हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो जगह कौन सी हैं। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर एंड नीमुच, ऑप्शन नंबर बी इज़ गाजीपुर एंड लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी इज़ लखनऊ एंड कासौली, और ऑप्शन नंबर डी है कासौली और नीमुच। सो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ गाजीपुर एंड नीमुच, बस यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओपियम की परमिशन है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज सेल ऑफ ओपियम टू स्टेट गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट कैन बी मेड ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री एक्ट, यानी जो भी ओपियम सेल करना है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट को, वो इनमें से किस जगह से की जाती है। और ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी गाजीपुर, ऑप्शन नंबर सी नीमुच एंड ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। सो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गाजीपुर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज इलीगल possession in small quantities for personal consumption or consumption of cocaine, morphine, diacetylmorphine or any other narcotic drug or psychotropic substance specified in this behalf is punishable with, यानी अगर आप इलीगली, ठीक है, गैर कानूनी तरह से किसी भी नारकोटिक ड्रग का पोजेशन यानी आप अपने पास रखते हो अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, या आप कंज्यूम करते हो कोकेन, मॉर्फिन या फिर डाईएसिटिल मॉर्फिन, तो एनडीपीएस एक्ट के अनुसार आपको क्या सज़ा मिल सकती है। और ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन और बोथ, ऑप्शन नंबर बी इज़ इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स और फाइन और बोथ, option number C, that is imprisonment up to 5 years or fine or both, and option number D is imprisonment up to 7 years or fine or both. So students, इसका right answer है option number A, that is imprisonment up to 1 year or fine or both, ठीक है। Moving to next question, the question is keeping false account or making false statement is punishable with, ठीक है, अगर आपने फॉल्स या फिर गलत अकाउंट डिटेल्स मेंटेन किया हुआ है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो आपको क्या पनिशमेंट मिल सकता है। ऑप्शंस हैं, ए इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन और बोथ, ऑप्शन नंबर बी इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स और फाइन और बोथ, ऑप्शन नंबर सी इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स और फाइन और बोथ, एंड ऑप्शन नंबर डी इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर और फाइन और बोथ। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स और फाइन और बोथ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 इज, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो शेड्यूल 1 में इंक्लूडेड नहीं है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के। और ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए क्लॉक्साजोलम, ऑप्शन नंबर बी लेफेटामाइन, ऑप्शन नंबर सी इज मैजिंडोल, और ऑप्शन नंबर डी
है सेकोबार्बिटल। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेकोबार्बिटल। सेकोबार्बिटल इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 3। ठीक है, सेकोबार्बिटल शेड्यूल 3 के अंतर्गत आता है, जहाँ की बाकी के तीनों शेड्यूल 1 में आते हैं। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो टेल मी दैट was this video helpful to you. We'll be meeting soon in next video. Thank you.